So in this video, I'm going to take one sum for journal entries, that how to pass journal entries, as we have already done. What is actually the traditional classification is, what are the rules and how to go with it, the structure and all we have done. So we are going to go with these 8 transactions are on your screen for April 2022. So we are going to assume these are the dates 1 2 3 4 5 6 7 8 till 8. So first entry is Ram started business by introducing the following assets: cash, furniture, plant and goods, and so on. So we are going to pass these transactions in a proper format. So we'll see. This is the format: date, particulars, and your amount, debit and credit. Okay, so first transaction, we are going to start with the first one. What happened? Ram started business by introducing the following assets. राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है, एंड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो क्या क्या लेके आया बिजनेस में एज अ कैपिटल: कैश, फर्नीचर, प्लांट एंड गुड्स. मींस कैश रियल अकाउंट की रियल नेचर, फर्नीचर रियल नेचर, प्लांट रियल नेचर, एंड गुड्स we can say in a real nature for the time being also. So these all are coming in the business. First of all, सब कुछ क्या हो रहा है बिजनेस में आ रहा है. So what comes in, what we do, we debit. So what I have to do, cash account, it is going to be cash account debited, then furniture account, then there is going to be plant account, then the last one goods, which we can write it down because starting mein aa raha hai, so this can be opening stock, debit. And because business is starting, as we have done कि business start हो रहा है, तब the owner is coming with something, तो हम उसको capital में डालते हैं. And if owner is withdrawing something, we put it in as a drawings. निकालेगा तो drawings है, कंपनी में डालेगा तो as a capital we are going to introduce depending upon the what exactly is happening in the transaction. So capital है, so capital account we are going to credit as Ram right now is a kind of giver क्योंकि वो दे रहा है. तो Ram's capital account you can write it down over here, और two capital account आप लिख सकते हैं. So this is going to be your proper like the way how we are going to I think how it is going to be, and what amounts now we are going to write it down. जितना जितना का वो particular transaction is coming in the business, like that only we are going to write it down. Cash कितना आ रहा है 10,000 का, furniture is of 20,000, plant is of 30,000 and stock is of 20,000. तो ये total हो गया 50, 60, 70, 80. तो टोटल कैपिटल जो है क्रेडिट साइड पे विल पुट 80,000. ठीक है जी. सो दिस इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द आपका जर्नल एंट्री फॉर विच वी कैन ऑल्सो गो विद द नरेशन. अगर हमने प्रॉपर इसको डालना है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुट नरेशन ऑल्सो ओवर हियर बीइंग कैपिटल और कैपिटल इंट्रोड्यूसिंग और इंट्रोड्यूस्ड with cash, plant, सब आप जो है वो लिख सकते हैं etc. ठीक है. So that is going to be your proper with cash etc. पूरा लिख लीजिएगा, मैं स्पेस के इशू के कारण I am just putting down this much. So like this we have done with the journal transaction over here. Second journal entry is of April. यहाँ पे सारे अप्रैल के ही हैं तो मैं डेट्स पहले ही डाल देती हूँ. अप्रैल 2 का, एंड अप्रैल 2 में एंट्री इज ही परचेज्ड गुड्स ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ 10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम सुरेश. ठीक है. सो मैंने इस सम में ना सारे एक सिंपल ट्रांजेक्शन्स भी ली हैं और थोड़ी डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन्स भी ली हैं और थोड़ी ऐसी जिसमें कुछ वर्ड्स हैं विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो अप्रैल 2 में व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, जो राम है ही की बात हो रही है, मतलब ऑनर की बात हो रही है. सो राम ने क्या किया है, परचेज्ड गुड्स ऑफ द इनवॉइस वैल्यू, जिसका इनवॉइस पे वैल्यू था 10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट, जो उसे ट्रेड डिस्काउंट पे मिली है. 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी कटेगा
उसके बाद उसके हम एंट्री ट्रांजेक्शन पास करेंगे फ्रॉम सुरेश। टू थिंग्स आर हियर नाउ। पहली बात तो डिस्काउंट की मैं बात कर दूं, टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट रहेंगे आपके जर्नल ट्रांजेक्शन में, एक होगा कैश डिस्काउंट, एक होगा ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो है वो आप जब भी ट्रांजेक्शन पास करोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप कैश अकाउंट डेबिट कर रहे हो, तो सिमिलरली डिस्काउंट अकाउंट भी ओपन होगा अगर कैश डिस्काउंट है तो, ठीक है। कैश डिस्काउंट की अगर बात हो रही है ट्रांजेक्शन में, अगर कैश डिस्काउंट की बात नहीं हो रही, ट्रेड डिस्काउंट की बात हो रही है, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करेंगे। मतलब शो नहीं करेंगे का मतलब है कि हम उसका अलग से अकाउंट वी आर नॉट गोइंग टू ओपन। ट्रेड डिस्काउंट, अगेन रिपीटिंग, ट्रेड डिस्काउंट का कोई अकाउंट ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, 10,000 का 10% डिस्काउंट हो जाएगा 1,000। तो नटशेल में कितने पैसे की परचेज, कितने रुपीज की परचेज की है, 9,000 की। तो एट द इन कंक्लूजन हम 9,000 की जो है वो एंट्री पास करने वाले हैं एंड परचेजेस हुई हैं। सो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, बिकॉज फिक्स्ड एसेट नहीं है। फिक्स्ड एसेट होती तो हम उस एसेट का नाम यहाँ पे लिख देते। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट कर देते हैं। एंड दूसरा किससे परचेज हो रही है, अगर I already told you in the previous video of journal entry कि अगर ना कुछ भी नहीं लिखा है, परचेज और सेल के केस में ही हमने देखना है, अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में कुछ नहीं लिखा है, कैश हो रहा है, चेक हो रहा है, किस तरीके से, किस ट्रांजेक्शन किस तरीके से हो रही है, तो वी आर गोइंग टू एज्यूम एज कैश, हम उसमें कैश अकाउंट ओपन कर देंगे। लेकिन परचेज और सेल के केस में वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर तो किसी पर्सन का नाम है उसमें, परचेज हो रही है, अगर आप परचेज कर रहे हो तो उस सप्लायर का नाम है, सिमिलरली अगर आप सेल कर रहे हो तो जिसको आप सेल कर रहे हो उस बंदे का नाम है, तो दोज पर्सन्स अकाउंट वी आर गोइंग टू ओपन। अगर कैश नहीं लिखा, अगर यहाँ पे सुरेश के साथ कैश भी लिखा होता तो सुरेश का अकाउंट नहीं आता, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं लिखा, सुरेश लिखा है, मतलब आर क्रेडिटर, सुरेश इज गोइंग टू बी आर क्रेडिटर, क्योंकि हमने उसको पैसे नहीं दिए, तो हम सुरेश का अकाउंट यहाँ पे खोल देंगे सुरेश के नाम से ही 9,000 का, विच इज वी आर गोइंग टू पे इन ऑब्वियसली इन फ्यूचर। सो अभी के लिए वो हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर, सुरेश हमारा क्रेडिटर बन गया है। सो दिस इज गोइंग टू बी आर ट्रांजेक्शन फॉर अप्रैल 2, परचेजेस अकाउंट डेबिट बाय 9,000 टू सुरेश अकाउंट 9,000। थर्ड वन इज ही सप्लाइड गुड्स। आपने जब नरेशन डालनी है ना तो प्रॉपर लिखना है कि ट्रेड डिस्काउंट 10% का 10,000 में से गया है। थर्ड, ही सप्लाइड गुड्स, नाउ राम ने सेल करी है गुड्स 1,000 टू रमेश एट इनवॉइस प्राइस 10% अबव कॉस्ट एट ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे ना दोनों ही दो टाइप के परसेंटेजेस की बात हुई है। पहले तो अगर हम सिंपल ट्रांजैक्शन देख लें, क्या होना चाहिए कि राम ने सेल करी है 1,000 की गुड्स रमेश को, और कैश की बात नहीं हुई तो ऑब्वियसली रमेश का अकाउंट ओपन होगा, क्योंकि रमेश हमें फ्यूचर में देगा, तो रमेश हमारा जो है वो क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। सो रमेश अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, so we are going to open sale account over here. So this is going to be the transaction, very simple, but अब amount कितना आना है, that is the main point. रुपीज 1,000 के प्रोडक्ट्स थे जो रमेश ने सेल किए हैं, उस पे कह रहा है 1,000 की कॉस्टिंग के जो प्रोडक्ट्स थे उसको इनवॉइस प्राइस जो भी था उसके ऊपर 10% उसने चार्ज किया है, 10% एक्स्ट्रा चार्ज किया है, और उसमें से 5% का उसे ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है। 10% ऊपर चार्ज किया है तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी 1,100 एंड माइनस 5% अगर हम कर देंगे, सो द अमाउंट इज गोइंग टू बी समवेयर दिस मच, 1045 फॉर बोथ द साइड्स। So एक बार मैं calculate, we'll do the calculation part so that it will be 1,000 का 10% is going to be yes 100, तो 1,100 के ऊपर आपको 5% लगाना है, ना कि 1,000 के ऊपर, तो -55 जो है 1,100 में से आप कर देंगे, it is going to be 1045. So this is going to be nutshell the amount जो रमेश आपको देगा फ्यूचर में, ठीक है जी। So done. Next entry is, which is very simple,
राम परचेज्ड मशीनरी स्टेशनरी सॉरी फॉर ऑफिस पर्पस, और इसमें स्टेशनरी की बात है